Good morning, students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of second class from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our conversation sentences. Students, those who not attend our previous conversation classes, so please attend these ones and complete your pending work. Let's start. Students, first of all, write your heading, translate the following sentences into English. Then your sentences. Let's start our 6th number sentence is आमने सामने खड़े हो. Stand face to face. आमने सामने खड़े हो. Stand face to face. STAND stand. FACE face. TO2 FACE face. Stand face to face. Our 7th sentence is आओ इसे ठीक करो. आओ इसे ठीक करो. Come fix it. Come fix it. COME come. Then आपको पुट करना है आपको पुट करना है कोमा. Then FIX fix. IT it. Come fix it. 8th sentence is बस थोड़ा सा. Just a little. Just a little. JUST just. A LITTLE little. बस थोड़ा सा. Just a little. Next one is आगे जाओ. आगे जाओ. Go head. Go head. Go HEAD head. Go head. 10th sentence is घबराओ मत. Do not panic. Do not panic. DO do. NOT not. PANIC panic. घबराओ मत. Do not panic. Students, let's revise again our sentences. 6th is आमने सामने खड़े हो. Stand face to face. Stand face to face. आओ इसे ठीक करो. Come fix it. Come fix it. 8th is बस थोड़ा सा. Just a little. Just a little. 9th is आगे जाओ. Go head. Go head. And last one is घबराओ मत. Do not panic. Do not panic. घबराने की इंग्लिश क्या होगी? Panic. घबराओ मत. Do not panic. So students, today we completed our 10 conversation sentences. Write them in your fair notebook in clean and clear writing, neat and clean writing. Learn them. Students, I hope you understand our these sentences. Thank you, students. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we are revising for our essay 1 exams. Now today we will revise chapter 2nd, food from plants. As you know, in previous video we revise word meanings of this lesson. Now we will do question answer of lesson 2nd in science, food from plants. Let's start. Question answer. Question number 6. Answer the following. That is question number 6 of your science text book. Question number A. What are some foods we get from plants? What are some foods we get from plants? कौन से वो फूड्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं.
Answer is we get fruits, vegetables, cereals, pulses, cooking oil etc. food from plants. हमें अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, कुकिंग ऑयल एटसेट्रा और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्पाइस हो गए, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ व्हीट फ्लोर? व्हीट फ्लोर क्या है? व्हीट फ्लोर क्या होता है? फ्लोर मीन्स आटा, गेहूं का आटा क्या होता है? आंसर इज व्हीट फ्लोर इज़ अ पाउडर मेड फ्रॉम द ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट. व्हीट फ्लोर क्या है? एक तरह का पाउडर है जो कि कैसे बनाया जाता है? ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, यानी मशीन में हम व्हीट को, जो गेहूं होते हैं उनको पीस कर जब हम जो पाउडर तैयार होता है वो व्हीट फ्लोर कहलाता है. आई रिपीट दिस आंसर, व्हीट फ्लोर इज़ अ पाउडर मेड फ्रॉम द ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट. व्हीट को यानी गेहूं को पीस कर जब हम जो पाउडर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्हीट फ्लोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, हाउ आर स्पाइसेस यूज़फुल? स्पाइसेस जो है, स्पाइसेस मीन्स मसाले जो हैं, वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, यूज़फुल है? आंसर इज स्पाइसेस यूज टू मेक फूड टेस्ट बेटर. स्पाइसेस क्या करते हैं? स्पाइसेस यूज टू मेक फूड टेस्ट बेटर. स्पाइसेस का यूज़ हम फूड का टेस्ट और भी बेटर, और भी अच्छा बनाने के लिए करते हैं. मसालों का यूज़ हम अपने भोजन को और भी स्वादिष्ट और भी टेस्टी बनाने के लिए करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ कोका यूज्ड फॉर? कोका जो है वो किस लिए यूज्ड होता है, उसका क्या उपयोग होता है? आंसर इज़ कोका इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट. कोका का हम यूज़ किस लिए करते हैं? चॉकलेट बनाने के लिए. जो चॉकलेट सभी बच्चों को बहुत डिलीशियस लगती है. इन दिस चॉकलेट वी यूज़ कोका. कोका जो है वो हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसको हम चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे टी बनाने के लिए हमें टी प्रिपेयर करने के लिए टी लीफ चाहिए, टी चाहिए. जैसे कॉफ़ी बनाने के लिए हमें कॉफ़ी पाउडर चाहिए, उसी तरह चॉकलेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोका. कोका इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ईच काइंड ऑफ प्लांट फूड. हर तरह का जो नेम ईच काइंड ऑफ प्लांट फूड, किस तरह का प्लांट वो फूड है वो हमें फिगर देख के लिखना है. वो क्या है वो नहीं लिखना, किस टाइप का फूड है वो लिखना है हमें. देयर आर द बॉक्स इन विच different words are given. These words are used to write here. pulses, vegetables, cereals, fruit, spices. ये वर्ड दिए हुए, इनको चूज़ करके आपको अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग वो किस टाइप के फूड में आता है आपको राइट करना है. देखो ये बेटा किसकी फिगर है? ये हमारा ब्लैक पेपर जो कि एक स्पाइस है. क्या है हमारा? स्पाइस है. SPICE, स्पाइस. दिस इज स्पाइस, राइट फ्रॉम देयर स्पाइस. ए हमारा क्या है? स्पाइस. ये बेटा फिगर देखो किसकी फिगर है? ये फिगर है कीवी की. किसकी फिगर है ये? कीवी की, जो कि हमारा किस में आता है? फ्रूट्स में आते हैं. क्या किस में आते हैं? फ्रूट्स में आते हैं. तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रूट. क्या लिखोगे? फ्रूट. हेयर फ्रूट इज़ रिटन. यहाँ से आपको लिखना है FRUIT, फ्रूट. ओके. नेक्स्ट सी. देखो बेटा किसकी फिगर है, पहचानोगे आप? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बिटर गार्ड. बिटर गार्ड जो बहुत खाने में कड़वा होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी भी लगता है और साथ में हमें बीमारियों से भी दूर रखता है. दिस इज़ बिटर गार्ड and this comes in the vegetable. This comes in food vegetable. किस टाइप के फूड में आता है ये? वेजिटेबल में आएगा आपका. यहाँ पे राइट करोगे वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल.
नेक्स्ट है हमारा, देखो बेटा किसकी फिगर है ये, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे हैं वीट। क्या है ये, हमारे वीट है। और ये हमारे आते हैं सीरियल्स। सीरियल्स में आते हैं अनाज जो कि हमें डेली ईट करने के लिए डेली ईट करते हैं और हमें हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स, CEREAL, सीरियल्स। एंड ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पल्सेस। किसकी पिक्चर है ये, पल्सेस है, एक दाल है, PULSES, पल्सेस, या राइट करोगे पल्सेस फ्रॉम देयर, PULSES, पल्सेस। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग हम करेंगे। हर 2 कॉलम्स आर गिवन, कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A को आपको कॉलम B से मिलाना है। देखो A पार्ट में क्या दिया हुआ है, पाइन एप्पल, कीवी। पाइन एप्पल, कीवी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दिए हुए हैं। किस टाइप के फूड में पम्पकिन और पाइन एप्पल और कीवी आता है। तो पाइन एप्पल सीरियल है, पल्सेस है, फ्रूट्स है, या स्पाइस है, या वेजिटेबल है। तो आप जानते हो ये क्या है, हमारे फ्रूट्स है। क्या है ये, हमारे फ्रूट्स। राइट हेयर नंबर 1 एंड मैच पाइन एप्पल कीवी टू फ्रूट्स। पाइन एप्पल कीवी क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं, तो इसको मैच करोगे इससे। B इज़ स्पिनच और पम्पकिन। स्पिनच और पम्पकिन ये हमारे किस में आते हैं बेटा, स्पिनच, पम्पकिन, ये हमारे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, स्पाइस हैं, या वेजिटेबल हैं। जानते हो आप, फ्रूट्स तो हमने फर्स्ट के लिए मैच कर दिया। देन स्पिनच, पम्पकिन इज़ वेजिटेबल। क्या है ये, हमारी वेजिटेबल है, तो मैच करोगे इसको 5th से। राइट हेयर नंबर 2, स्पिनच, पम्पकिन इज़ वेजिटेबल। ओके, C इज़ बार्ले, मेज। बार्ले मेज हमारा किस में आएगा, सीरियल्स है, पल्सेस है, स्पाइस है। फ्रूट और वेजिटेबल तो हमने मैच कर दिए, तो बार्ले और मेज हमारा आता है सीरियल्स में। किस में आता है ये, सीरियल्स में। मैच बार्ले एंड मेज टू सीरियल्स। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन ग्राम एंड बेंगल ग्राम। ग्रीन ग्राम और बेंगल ग्राम दोनों ही क्या हैं, ये हमारे पल्सेस हैं। क्या है ये, हमारे पल्सेस। मैश विथ पल्सेस। E इज़ ब्लैक पेपर एंड कार्डामोम। ब्लैक पेपर और कार्डामोम ये किससे मैच होगा बेटा, एक ही हमारे पास रिमेनिंग है, दैट इज़ स्पाइस। मैच विथ स्पाइसेस। ब्लैक पेपर और कार्डामोम हमारा स्पाइस में आता है। ओके डियर स्टूडेंट, लर्न द क्वेश्चन आंसर एंड मैच द फॉलोइंग एंड द पिक्चर एंड द क्वेश्चन नंबर 3 which is done with the help of picture. Okay dear students, thank you and have a nice day. Dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2nd. Today we start revision for our essay 1 exams. Now today we will revise chapter number 1 in English reader, that is study and play. Name of our lesson is study and play. Let's start. Dear student, as you know इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं. Now today we revise this lesson, so I taught you the summary of this lesson. This is the poem study and play. स्टडी मीन्स पढ़ना और प्ले मतलब खेलना, पढ़ना और खेलना. दिस इज़ द टाइटल ऑफ आवर पोएम. इस चैप्टर में क्या बताया गया है बेटा आपको, इस चैप्टर में पोएट आपको बताता है दैट इफ़ वी वांट टू प्ले वी शुड प्ले फुली एंड इफ़ वी आर स्टडिंग वी शुड स्टडी प्रॉपरली. कह रहा है कि अगर हम जब खेल रहे हैं तो हमें बस खेलना ही चाहिए, पूरी तरह हमें खेलना चाहिए.
वही हमारा ध्यान होना चाहिए। और लेकिन जब हम पढ़ रहे हो तो हमारा ध्यान सिर्फ किस में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जहाँ उनको पढ़ाई के लिए बैठा दिया, जो बैठ तो जाते हैं बुक खोल के, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। और यही चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है आपको कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, खेल रहे हैं तो हमें खेलना चाहिए। यही एक तरीका है अपने दिन को पूरी तरह हैप्पी रखने का, खुश रखने का। और एवरीथिंग यू डू विथ ऑल माइट, ऑल योर माइट। जो भी हम करते हैं वो हमें पूरी अपनी एनर्जी पावर के साथ करना चाहिए। अगर हम किस चीज़ को आधा करते हैं तो वो कभी भी पूरी सही नहीं होती। और सही, वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल। जब हम किसी काम को मन लगा के करते हैं तो उस टाइम हमारे पास एक ही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 4 काम खोल लिए। पढ़ाई के लिए भी सोच लो, 4 सब्जेक्ट्स खोल लिए कि इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। दिस इज़ द रॉन्ग वे। जब हमें पढ़ना है तो एक ही सब्जेक्ट करो एक टाइम में, कि इस टाइम हमें ये सब्जेक्ट करना है तो उसको पूरे मन से करो। नेक्स्ट टाइम दूसरा सब्जेक्ट करना है तो हमारा जो है स्टडी प्रॉपरली और बहुत अच्छे से होगी और हमारा मन भी करेगा पढ़ने का। नाउ दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन। नाउ वी स्टार्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। वर्ड मीनिंग चैप्टर 1। फर्स्ट इज़ वाइल। वाइल मीन्स होता है व्हेन, मतलब जब। सेकेंड इज़ माइट, पावर। माइट मीन्स पावर, ताकत। थिंग्स डन इन हाफ, थिंग्स नॉट डन कम्प्लीटली। थिंग्स डन इन हाफ मतलब आधी की हुई काम, यानी दूसरा मीनिंग उसका हो सकता है थिंग्स नॉट डन कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरा ना करना, वही होता है थिंग्स डन इन हाफ। फोर्थ इज़ वेल। वेल मीन्स होता है गुड। क्वाइट, नॉट वेरी। Sixth is way. Way means path. Seventh is everything, all. These are the word meaning of this lesson. Now we start exercise. Exercise A. Complete the poem words. Poem जो हमने read करी उसकी lines हमें complete करनी है। Study while you study dash play. तो here आप fill करोगे play while you play. Second line में क्या fill होगा, play while you play. सेकेंड इज़ थिंग्स डन इन हाफ आर डैश। यहाँ आपको फिल करना है नेवर डन क्वाइट राइट, नेवर डन क्वाइट राइट। थर्ड इज़ अ वेरी गुड रूल एज डैश। तो यहाँ पे आपको फिल करना है मेनी कैन टेल, मेनी कैन टेल, एज मेनी कैन टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर बी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी राइट करना है हमें ट्रू स्टेटमेंट के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट इज़ वी शुड प्ले वाइल वी स्टडी। हमें खेलना चाहिए जब हम पढ़ रहे हों। जब हम पढ़ रहे हों तो हमें खेलना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली रॉन्ग। दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। राइट हेयर एफ। सेकेंड इज़ वी शुड डू थिंग्स बाई हाफ्स। हमें जो भी चीज़ करनी हो वो हमें कैसे करनी चाहिए, आधी करनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स। राइट हेयर एफ फॉर फॉल्स। थर्ड इज़ वी शुड डू वन थिंग एट वन टाइम। हमें एक टाइम में एक ही चीज़ करनी चाहिए। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जब भी हम कोई चीज़ करें तो एक समय में एक चीज़ करनी चाहिए। राइट हेयर टी फॉर ट्रू। फोर्थ इज़ वी शुड डू एवरीथिंग विथ ऑल आवर माइट। जो भी हम करें हर चीज़ हमें किससे करनी चाहिए, पूरी पावर, पूरी ताकत के साथ करनी चाहिए। वी शुड डू एवरीथिंग विथ ऑल आवर माइट। तो राइट हेयर टी फॉर ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। Now chapter 1 exercise C, that is question answer. Answer the following questions in 1 or 2 words. Answer देना है आपको question का in 1 or 2 word में देना है. First question is what should we do while we study? जब हम पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर इज स्टडी. आंसर क्या आएगा आपका? स्टडी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड वी डू वाइल वी प्ले? हमें क्या करना चाहिए जब हम प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो? तो आंसर इज
ओनली प्ले, जब हम प्ले कर रहे हो तो हमें प्ले ही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट शुड वी डू एट वन टाइम, हमें एक समय पे क्या करना चाहिए। आंसर इज़ डू वन थिंग, एक टाइम में एक ही चीज़ करनी चाहिए, तो आंसर इज़ डू वन थिंग, डू वन थिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, आंसर देना है गिवन क्वेश्चंस का इन वन सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी हैव ए हैप्पी डे, हमारे पास किस तरह से एक हैप्पी डे यानी खुशनुमा दिन हो सकता है। आंसर इज़ इफ़ वी डू थिंग वेल वी हैव ए हैप्पी डे, अगर हम किसी भी चीज़ को, जो हम काम कर रहे हैं वो वेल गुड यानी अच्छे तरीके से करें तो हमारा दिन हैप्पी होगा। इफ़ वी डू थिंग वेल, अगर हम किसी चीज़ को वेल मीन्स सही तरीके से करें तो वी हैव ए हैप्पी डे, तो हमारा दिन क्या होगा, खुश होगा, दिन पूरे दिन यानी हम खुश रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर थिंग्स नेवर डन राइट, व्हेन आर थिंग्स नेवर डन राइट, कब चीज़ें सही नहीं होती, तो आंसर इज़ व्हेन द थिंग्स डन इन हाफ दे नेवर डन राइट, तो व्हेन द थिंग्स डन इन हाफ, जब हम चीज़ों को आधा करते हैं, दे नेवर डन राइट, तो वो कभी भी सही नहीं होती। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मस्ट बी डन विथ ऑल आवर माइट, क्या हमें करना चाहिए पूरी ताकत के साथ। दिस इज़ द क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी डन विथ ऑल आवर माइट, हमें अपनी पूरी ताकत के साथ क्या करना चाहिए। आंसर इज़ एवरीथिंग मस्ट बी डन विथ ऑल आवर माइट, सभी चीज़ हमें कैसे करनी चाहिए, सभी चीज़ें हमें अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ करनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी डन विथ ऑल आवर माइट, जो भी काम करें हम वो सभी काम हमें पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड थिंग्स बी डन, हाउ शुड थिंग्स बी डन, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए। आंसर इज़ थिंग्स शुड बी डन वेल, चीज़ों को सही करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। वेल मीन्स गुड, अच्छा, और हिंदी में आप कह सकते हो एक जो प्रॉपर वे होता है यानी सही तरीका से किया हुआ काम, वेल। थिंग्स शुड बी डन वेल, आंसर इज़ थिंग्स शुड बी डन वेल, चीज़ों को कैसा करना चाहिए, वेल, सही तरीके से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, what will happen if we do not do things properly, what will happen, क्या होगा अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली पूरी तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन, आर यू अंडरस्टैंड, what will happen, क्या होगा, if we do not do, अगर हम नहीं करते हैं थिंग्स प्रॉपरली, चीज़ों को प्रॉपरली पूरे तरीके से अगर हम चीज़ों को नहीं करते हैं तो क्या होगा। आंसर इज़ इफ़ वी डू नॉट डू थिंग्स प्रॉपरली दैन दे नेवर डन राइट, अगर हम चीज़ों को सही तरीके से, पूरी तरीके से नहीं करते हैं तो वो कभी भी सही नहीं होंगे। इफ़ वी डू नॉट डू, अगर हम नहीं करते हैं थिंग्स प्रॉपरली, चीज़ों को सही तरीके से, देन दे नेवर डन राइट, तो वो सही नहीं होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज चैप्टर नंबर 1 फॉर योर essay 1 exams. Learn all the question answer, word meaning and other exercise of this lesson properly. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 1st. चैप्टर नंबर 1 का हमारा रिवीजन चल रहा है 2nd क्लास में। स्टे हेल्दी, चैप्टर का नाम क्या है, स्टे हेल्दी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी कम्प्लीटली रिवाइज दिस चैप्टर एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल्सो लर्न। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज फूड यूजफुल फॉर अस, भोजन जो है हमारे लिए कैसे यूजफुल या कैसे फ़ायदेमंद है।
आंसर है फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन जो है वो हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इट कीप अस हेल्दी, के हमें स्वस्थ बनाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स सच एज। क्या है, हम हमारी जो बॉडी है उसको किस स्वस्थ रख सकते हैं कुछ हैबिट्स को फॉलो करके। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स। हम सच एज हम जो अपनी बॉडी है उसको हेल्दी रख सकते हैं कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करके। कौन कौन सी है। फर्स्ट है एक्सरसाइज, EXERCISE। बेटा आपको जो इसकी स्पेलिंग है वो कम्प्लीटली लर्न करनी है। EXERCISE एक्सरसाइज। ईटिंग हेल्दी डाइट, EATING ईटिंग, HEALTHY हेल्दी डाइट, DIET। थर्ड है रेस्ट, REST। फोर्थ है क्लीनिनेस, CLEANLINESS क्लीनिनेस। क्या है, कुछ जो अच्छी आदतें हैं उनको फॉलो करके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करके, ईटिंग हेल्दी डाइट, रेस्ट, क्लीनिनेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द वेरियस वेज टू कीप आवर बॉडी क्लीन। क्या है जो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट, हमें जो नेल्स हैं हमारे उनको शॉर्ट रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट, हमें अपने नेल्स जो हैं वो छोटे रखने चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डज रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप हेल्दी। किस प्रकार से जो रेस्ट और रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमें हेल्दी रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेस्ट हेडिंग डालेंगे। रेस्ट मेक्स आवर बॉडी एंड ब्रेन फ्रेश। रेस्ट जो है वो हमारे बॉडी को और मस्तिष्क को फ्रेश बनाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हेडिंग डालेंगे। डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। एक बार इन क्वेश्चंस को हम फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ इज़ फूड यूजफुल फॉर अस। भोजन जो है वो हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है, कैसे यूजफुल है। आंसर है फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन जो है वो हम काम करने के लिए और खेलने की एनर्जी प्रदान करता है। इट कीप अस हेल्दी, वो हमें स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय फॉलोइंग सम गुड हैबिट्स। हम हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं कुछ गुड अच्छी आदतें फॉलो करके। फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। सेकंड है ईटिंग हेल्दी डाइट। थर्ड है रेस्ट। फोर्थ क्या है, क्लीनलीनेस। We can keep our body healthy by following some good exercise। हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करके, सच एज कौन कौन सी हैं, एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी डाइट, रेस्ट और क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द वेरियस वे टू कीप आवर बॉडी क्लीन। अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। फर्स्ट है वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड कीप आवर नेल्स शॉर्ट, हमें अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, छोटे कर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप हेल्दी। किस प्रकार से रेस्ट और रेगुलर एक्सरसाइज है जो हमें हेल्दी रख सकती है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रेस्ट, REST। रेस्ट मेक्स आवर बॉडी एंड ब्रेन फ्रेश। रेस्ट जो है, आराम जो है वो हमारी बॉडी और ब्रेन को फ्रेश बनाती है, स्वस्थ बनाती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। व्यायाम करने से, डेली व्यायाम करने से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। एक्सरसाइज क्या है, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चंस। यू ऑल्सो लर्न completely दिस चैप्टर फॉर essay 1 एग्जाम। सो थैंक यू बेटा। Good morning students. So let me start our online classes of math for second class.
कल की वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर के बारे में बताया था आपको, और आज हम एक्सरसाइज 3.1 ऐड के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में है राइट द ट्रू फॉर। ट्रू का सिंबल हम लिखते हैं टी से, एंड एफ को डिनोट करते हैं, सॉरी एफ होता है किसका, फॉल्स का। ओके, ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है आपको ट्रू और फॉल्स की। इनको आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट है 16 + 12 = 12 + 14। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि 16 + 12 का जो आंसर होगा और 12 + 14 का जो आंसर होगा, क्या वो इक्वल है? तो देखेंगे कैसे। 16 में 12 ऐड करेंगे, 6 के बाद 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 8, 1 and 2 28, कितना आया 28। अब 12 और 14 का ऐड देखेंगे, 2 के बाद 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ हो गई, 2 3 4 5 6, 1 and 2, 1 and 1 2, ये हुआ 26। तो ये चीज़ गलत है ना, इन दोनों का ऐड सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू, सॉरी फॉल्स है, मैं गलत बोल गई। ट्रू होता है सही और फॉल्स होता है रॉन्ग, ये हमारा फॉल्स है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, कभी कंफ्यूज हो जाओ ये क्या बना दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 94 + 0 = 4 + 94। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 49 डिजिट है और 94 डिजिट है, वो दो 94 बिगेस्ट है, 49 स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों का जोड़ इक्वल नहीं होगा एंड, तो ये भी फॉल्स। इसके बाद 3 है हमारा 68 + 4 = 68 + 4। 68 में 4 ऐड करेंगे, करके देखते हैं, इधर कर लेते हैं हम। 68 में 4 ऐड, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 में 1 ऐड करेंगे, 72। इसका भी 72 होगा और इसका भी 72, तो ये बात सही है, तो क्या होगा ट्रू। के बाद हमारा 4 है 0 + 28 = 28, तो ये बात भी सही है, ट्रू। 5 नंबर पे है हमारा 94 + 0 = 0, ये बात गलत है, फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स के एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे जो ट्रू फॉल्स के थे, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें ऐड के सम है आपके, तो वो देखो कैसे करने हैं। एक्सरसाइज 3.2, add the following, using expanded form। फर्स्ट क्वेश्चन, ये कहना क्या चाह रहा है वो देखो, ये कह रहा है हमें क्वेश्चन को ऐड भी करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बताना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ऐड 458 एंड 231। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 10 100 458, सेकेंड डिजिट क्या है 231, ऐड करने से पहले इनको जो फर्स्ट डिजिट है इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे।
तो देखो क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा 4, तो यहाँ लिखेंगे 400। ओके। सेकंड वाला क्या है, टेंस, 5 टेंस। लास्ट क्या है, वंस, वंस क्या है 8। ओके, अब ऐसे ही सेम सेकंड डिजिट 200, 3 times 1 once। अब ऐड करेंगे, 8 में 1 सिंपल है बिल्कुल, वंस वाला वंस से 8 में 1 करेंगे 9। अब ये क्या है 5, तो 5 लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला हमारे पास कितना है 5 3, तो इसके साथ 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 हो गई। अब टेंस वाले को टेंस वाले के साथ काउंट करना है, 5 तो यहाँ ऑलरेडी है, 6 7 8, 100 वाले को 100 वाले, 4 यहाँ है, 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1 2, 4 के बाद 5 6, क्या आंसर आया हमारा 689। अब इसको भी सेम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 600 8 tens 9 ones, 1 tens 100। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यह इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 10 100, फर्स्ट डिजिट क्या है 458, सेकंड डिजिट क्या है 231, ऐड करना है। ये इतना लिखने के बाद फिर इधर वाला लिखेंगे, वंस नंबर पे 8 है, तो ये हम पीछे से शुरू करते हैं इसमें ऐड करना, पर यहाँ राइट हम इधर की साइड से करेंगे फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर 4 किसके नीचे आ रहा है, 100 के नीचे, 400, 5 टेंस के नीचे, 5 टेंस, 8 वंस के नीचे, 8 वन। ओके, इसी के साथ फिर सेकंड डिजिट 200, 3 टेंस 1 वंस, आंसर ऐड करेंगे क्वेश्चन को, फिर जो आंसर आएगा उसको भी ऐसे 600, 8 टेंस 9 वंस। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं राइट कर देती हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 1 मैंने कर दिया है, 2 है ऐड 701 एंड 287। 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है हमारा ऐड 133 एंड 425। ये आपका HW है और 2 ही क्वेश्चन है, 1 मैंने आपको कर दिया है, 2 आपको करने हैं। एक्सरसाइज 2.3.2 कंप्लीट हो जाएगी और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3 जो सिंपल ऐड के क्वेश्चन है। थैंक यू। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा दूसरी में मैंने पार्ट 3 मम्मी की सलाह आपको पढ़ाया था, उसके अभ्यास कार्य मैंने करा दिए थे, कुछ प्रश्न और शब्दार्थ बच गए थे, वो मैं आज करा रही हूँ आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, शब्दार्थ। खोजना, ढूंढना, स्कूल, विद्यालय, आश्चर्य, हैरानी, प्यारा, स्नेह, मुसीबत, कष्ट या परेशानी, पेपर, प्रश्न पत्र।
पहला प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर होगा, हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। क्या सीख मिलती है? हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। आगे है, पापा ने परी को कैसे समझाया? पापा ने परी को कैसे समझाया नहीं है, यहाँ आएगा क्या समझाया। तो क्या समझाया था बच्चों पापा ने परी को समझाया कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो। क्या समझाया था पापा ने? कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो। अगला प्रश्न है, परी क्यों परेशान थी? क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। क्या उत्तर होगा? क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। आगे है, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? क्या उत्तर होगा इसका? अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। एक बार फिर से देख लो। अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। आगे है, पापा ने परी को कैसे समझाया? इसका उत्तर होगा, पापा ने परी को प्यार से समझाया। ठीक है, कैसे समझाया? प्यार से। अगला प्रश्न है, परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, परी ने कहा, आज जूते न मिलते तो क्या होता? आज तो मेरा हिंदी का पेपर था। एक बार फिर से देखिए। खोजना, ढूंढना, स्कूल, विद्यालय, आश्चर्य, हैरानी, प्यारा, स्नेह, मुसीबत, कष्ट या परेशानी, पेपर, प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर होगा, क्या सीख मिलती है? हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। ठीक है। पापा ने परी को क्या समझाया? पापा ने परी को समझाया कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो। आगे, परी क्यों परेशान थी? इसका उत्तर होगा, क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। अगला प्रश्न है, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? इसका उत्तर क्या होगा? अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। अगला प्रश्न है, पापा ने परी को कैसे समझाया? इसका उत्तर क्या होगा? पापा ने परी को प्यार से समझाया। आगे है, परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, परी ने कहा, आज जूते न मिलते तो क्या होता? आज तो मेरा हिंदी का पेपर था। तो बच्चों, ये मैंने आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर जो कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इन्हें लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।